કોરોના કાળમાં મહિલાઓને પણ ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો થઈ છે. નોર્મલ લાઈફથી માંડીને જે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ છે એને પણ ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે, જેને ઇન્ફર્ટિલિટી છે એને પણ ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે. લેડીઝ એટલે આ દુનિયાની આધી આબાદી છે. એને પ્રોબ્લેમને એડ્રેસ કરીને આજે આપણે યોગ કરવાનું છે. આ તો બેન પોતે MBBS કરી રહી છે, પૂરી થઈ ગઈ છે, એને અત્યારે આગળનું પ્રિપરેશન કરી રહી છે અને મારા પાસે પહેલે આવી હતી ત્યારથી આ યોગ શિક્ષક થઈ ગઈ હતી. શું નામ તારું? કીર્તિ. હું ગુજરાતથી આવું છું. 2009માં મેં યોગ શિક્ષકની શિબિર હતી જે મેં અટેન્ડ કરેલી હતી. એ પછી મારું ભણવાનું ત્યારે સ્ટાર્ટ હતું. અત્યારે મારી કોલેજને MBBSની કોલેજ પૂરી થઈ ગઈ છે અને હવે હું માસ્ટર્સ માટે પ્રિપરેશન કરું છું. મને ઉધરસો બહુ જ રહેતી હતી શિયાળામાં. એક વાક્ય પણ પૂરું કરું તો 3 થી 4 ઉધરસ તો એમાં જ આવી જાય. બોલું, મોઢું ખોલું એટલે ઉધરસ ચાલુ થાય અને ઠંડીની હવા લાગે તોય ઉધરસ ચાલુ થાય. મને ડૉક્ટર્સ એવું કહેતા હતા કે તને ઠંડીની એલર્જી છે, તારે ઠંડા હવામાનમાં નહીં રહેવાનું. પણ શિયાળામાં તો શરદી પણ ન મટે અને એ જે શરદી થઈ 12 મહિના સુધી ચાલતી હતી. જે મેં હમણાં જ આ લોકડાઉનમાં બાબાએ કીધેલું કે આપણે દ્રાક્ષ અને ખજૂરનો કલ્પ કરવો જોઈએ, તો મેં 1 વીક દ્રાક્ષ અને ખજૂર એ સિવાય બીજું કશું જ નહીં ઉપવાસ કરેલા અને બસ પાણી ઉપર હતી. તો મારું 5 કિલો વજન પણ ઓછું થઈ ગયું છે. એ સિવાય મારી જે એ વખતની ઉધરસો હતી જે બંધ થઈ ગઈ, જે મને આખા શિયાળામાં આ વખતે ઉધરસ નથી થઈ, જે મને પોતાને માટે નવાઈ રૂપ છે. એ સિવાય મને બીજા પણ એનાલ ફિશર્સના પણ પ્રોબ્લેમ્સ હતા અને મને કોન્સ્ટિપેશન કબજિયાત તો મને નાનપણથી જ છે, ક્યારેય રેગ્યુલર આવ્યું નથી. અને MBBSમાં હું ભણતી કે જેની સાયકલ એક નહીં એક દિવસ પણ રેગ્યુલર હોય તો એ પ્રોબ્લેમ નથી. તો મેં ક્યારેય આ વસ્તુ પર ધ્યાન જ ના દીધી અને એ પછી વધતું ગયું કે મને ફિશર્સ પડી ગયા અને બ્લીડિંગ થવા માંડ્યું હતું. એ પછી મેં એના માટે ઓપરેટેડ પણ થઈ, લેટરલ સ્ફિન્ક્ટરેક્ટોમી મેં કરાવ્યું, પણ તોય ફેર નહોતો, દવા લેવાથી પણ ફેર નહોતો. પછી હું યોગ ઉપર આવી ગઈ અને યોગથી અત્યારે મારું રેગ્યુલર છે અને મને કોન્સ્ટિપેશન જે મારું આટલા વર્ષથી છે, જો કે 25 યર્સ, તો એ પણ અત્યારે રિલીવ થઈ ગયું છે. નાનપણથી કોન્સ્ટિપેશન હતું, એના માટે કપાલભાતી. ચલો સભી કપાલભાતી કરો. કપાલભાતી કરો ને કપાલભાતી મંડુકાસનમાં કરે ને આવી રીતે કપાલભાતી આવી રીતે કરે તો ચલો તમે મંડુકાસનમાં કરો કપાલભાતી. મંડુકાસનમાં કે પદ્માસનમાં બેસીને અહીં અંદરની સાઈડ આમ લગાવો બેટા. હા, પછી આમ વળો. આવી રીતે આ કરે તો એકદમ એનાથી તરત ફાયદો થાય કોન્સ્ટિપેશનમાં, જેમાં દીકરીને સારું થઈ ગયું. બધા આવી જ રીતે કપાલભાતી મંડુકાસનમાં કરો. કબજિયાત, પછી યુટ્રસ, ઓવરી, પ્રોસ્ટેટની પ્રોબ્લેમ, આ બધું જતું રહે. તમને શું લાભ થયું બેટા? મને મેન્સ્ટ્રુએશનની તકલીફ હતી. હું 6 મહિના 9 મહિના પર ટાઈમ પર આવતી હતી. મારું PTC ચાલતું હતું. હું ટીચર છું અત્યારે ગુજરાતમાં. હું જ્યારે PTC ચાલતું હતું ત્યારે મેં પીરિયડ માટેની રેગ્યુલર થવા માટેની દવાઓ પણ લીધી હતી, હોર્મોન્સની, પણ તેનાથી મને ખંજવાળ ને એવી સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ ગઈ હતી. પછી મને કેન્સર પણ થયેલું અને કેન્સર પછી હું એટલી બધી વીક થઈ ગઈ હતી, હું કંઈ જ કરી શકતી નહોતી. આ લોકડાઉનમાં મને ઇન્ડિયા TV પર જે બાબા રામદેવનું જે આવે છે યોગાસન પ્રાણાયામ માટેનું, એ મેં શરૂ કર્યા. ત્યારથી મને વીકનેસ પણ એકદમ દૂર થઈ ગઈ છે. અત્યારે હું બધું પ્રાણાયામ સહિત, સૂર્ય નમસ્કાર સહિત બધા પ્રાણાયામ, યોગાસન, આસનો બધું કરી શકું છું. કેન્સર અત્યારે કંઈ જ નથી. અને રીના કાપડી, મારું 86 કિલો વજન હતું, અત્યારે 72 કિલો વજન છે. અને મારી હોર્મોનલ જે તકલીફ હતી એ પણ ડોક્ટરે કહ્યું કે હવે સારી થઈ ગઈ છે. हार्मोनल इम्बैलेंस घणું બધું હોય. તમને શું ફાયદો થયો? स्वामी जी, मुझे 10 साल की थी तब से सर दर्द, माइग्रेन था और यहाँ पर आई तब भी हुआ, पर स्वामी जी यहाँ मुझे इतना आराम हुआ है, सर दर्द में बहुत आराम हुआ है. और स्वामी जी मुझे बैक पेन, सर्वाइकल और ये भी प्रॉब्लम थी, यूट्रस में भी PID जो प्रॉब्लम है वो थी. और स्वामी जी बहुत सारे हार्मोन इम्बेलेंस, यहाँ पर हेयर ग्रोथ भी हो गई थी, 15 लेजर PCOD થી થાય અને ઘણા બધાને ખ્યાલ જ ન હોય હાર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ થી થઈ જાય. और स्वामी जी मैंने 15 लेजर सिटिंग्स करवा ली थी, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया. तब मैंने योगा शुरू किया, अब हेयर ग्रोथ कम हो गई है. એ જોરદાર કામ હતું. ચલો અનુલોમ વિલોમ કરતા રહો બધું. આ બહેનોને જોડી છે ને, આ બંને બહેનો છે, આ બંને બહેનો છે. હા, એક આમાં US માં રહે છે, એક અહીંયા કયા રહે છે? दिल्ली में. तेरे को क्या क्या फायदा हुआ बेटा? मुझे स्किन इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम था, मुझे हाइड्रोनेटाइज HS का प्रॉब्लम था. स्किन प्रॉब्लम प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रही थी क्या प्रॉब्लम है. उसमें थोड़ा सा स्किन में रेडनेस और थोड़ा सा पिंपल्स टाइप्स निकल जाते हैं. तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था US में कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका.
लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, इसके साथ ही रहना है बस। एंटीबायोटिक्स खाओ और सर्जरी एंड स्टेरॉइड्स के लिए बोला था। तो कोरोना के बाद भी आई टुक द रिस्क कि इंडिया जाती हूँ, एक बार होप के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सोचा कि यहाँ पे आके योग और सब सीखती हूँ स्वामी जी की कृपा से। मैं यहाँ पे आ पाई। अभी तो यूएस रिटर्न का भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। स्वामी जी, मेरे घुटनों में, नीज में गैप बता दिया था डॉक्टर ने, और विटामिन D7 आ गया था। और मैं ऐसे तो क्या स्वामी जी, मैं चौकड़ी मार के और उठ के बैठ भी नहीं सकती थी, और वज्रासन में मैंने बैठना छोड़ दिया था। पहले आधा घंटा बैठती थी। दिन में हुआ है 7 से 50? एक साल में हो गया स्वामी जी। लगातार ये देखो योग हाँ कर जी। रही है। क्या बात है। तूने क्या फायदा पाया बेटा? स्वामी जी, तू मुझे, कहाँ से आई है? मैं महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आई हूँ। मेरे नाना जी कई सालों से आपका चैनल देखते हैं और हमें हमेशा बोलते हैं कि अनुलोम विलोम करो, तेरा चश्मा उतर जाएगा। बट वो जब एक्चुअल में यहाँ पर आके समझ में आया कि उसका इफ़ेक्ट हो रहा है और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। मैं CA फाइनल की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा 8-10 घंटे का सिटिंग होता है पढ़ाई करने के लिए, बैठने का। उस वजह से मुझे नेक में काफ़ी स्ट्रेन होने लगा था, एकदम सर्वाइकल के सिम्टम्स थे। तो यहाँ 1 हफ्ते में ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है स्वामी जी। સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટિસ મટાડી નાખ્યો અને આ છોકરી CA બહુ જ મોટી પઢાઈ હોય, એમાં બહુ જોર પડે દિમાગ ઉપર, બહુ ટફ પઢાઈ હોય છે। हाँ એ जी। પણ કરે છે। बाबा, मुझे 8 साल से अर्थराइटिस रहा और उस पे स्टेरॉइड्स लगते थे, हाथों में भी पैरों में भी इतना सूजन हो जाता था। एक्चुअली अर्थराइटिस अटैक होते थे मुझे, ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यूअस बीच में अटैक होता था, और वो कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो जाता था। तो स्टीरॉइड कितना लेती थी? चलो अनुलोम विलोम करती रहो। स्टीरॉइड्स मुझे दोनों हाथों में लगते थे, उंगलियों में, और दोनों पैरों में लगते थे, कई बार यहाँ रिस्ट में लगते थे। और उसकी वजह से इतना पेनफुल होता था कि मैं इनफैक्ट पेन को भी नहीं पकड़ सकती थी। हमारा खुद का बिजनेस है टेलीकॉम का, और छोटे जो साथ में फैमिली बिजनेस में हमने अपने मेंबर्स को जोड़ा है। मैं इनफैक्ट उनको कहती थी, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप मेरा उसको हेल्प आउट कीजिए। सो साइमल्टेनियसली हमने पॉजिटिविटीज़ को देखा। अर्थराइटिस ने हमारे साथ हमारे सिबलिंग्स को जोड़ा बिजनेस प्रोफेशन में, और आपकी वजह से हमने अपना स्वास्थ्य वापस पाया, योग शुरू किया। इनिशियली योग को शुरू करने में मेरी मम्मा हैं, पीछे बैठी हैं, उनका वो शुरुआत उन्होंने की। वो 100% फॉलो करती है। प्रोडक्शन उधर का ही है। क्योंकि माँ, बेटियां तो माँ की डुप्लीकेट होती है, उसी की रिप्लिका होती है। तो ये तो तुम्हारी माँ तो बहुत स्वस्थ है। नहीं, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। मेरे को यूट्रस का ऑपरेशन होने के बाद घुटने एकदम गए मेरे, और फिर अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया। अर्थराइटिस को जल्दी हो गया इसको अब बस ऐसे बैठ तो सकती हूँ, लेकिन मुंडो आसन में नहीं बैठ सकती अभी। थोड़ी देर अब ऑर्थोग्रिड खाना, वो खा रही हूँ मैं। इंजेक्शंस लगवाए मैंने, इंजेक्शंस लगवाए नीज में। और हुआ क्या, मैं जिस दिन लगवा के आई, आपने अगले दिन सुबह आस्था पे बोला कि कोई भी इंजेक्शन ना लगवाए, ना हजारों का ना लाखों का। लेकिन उसके बाद आपकी ऑर्थोग्रिड, पीड़ानिल और श्वासारी गोल्ड, वो सब शुरू करके बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। गिलोय भी लगातार पिला रहे हैं। जी, गिलोय और एलोवेरा ये इसको रिपेयर करता है अंदर से। थायराइड क्योर किया मैंने, और पहले हाँ वो भी दवाई बिल्कुल बंद है 1 साल से। और उससे पहले मेरे को जुकाम छींके बहुत आती थी, वो तो 2004-5 की बात होगी। मैं तब से बहुत दिनों से फॉलो कर रही थी, और बच्चों को कोशिश 7 साल के थे मम्मी तब से। सुबह टीवी चलते गद्दा डाल के इनको बैठा दे। हाँ, इन्होंने बीच में हुआ गड़बड़ हुई, हो गया ना अर्थराइटिस वाला। अभी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। अर्थराइटिस में मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से तो मुझे कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, अब इसको 100% अच्छा ही रहेगा। स्टीरॉइड कितने रुपए की लगाती थी? 10-15 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता था। बाबा जी, मेरा पीरियड बहुत अनबैलेंस रहता था,
तो मैंने आपका योगा भी किया आप टीवी में देख के, और क्या नाम है वहाँ से मैंने दवाई भी ली नोएडा से, सेक्टर 41 से। तो उससे मेरे को मैं आपका जूस और वो जो जो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी थी, सारी दवाइयाँ फॉलो करी, खाई। आपके योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति हम सारी फैमिली बैठ के करते हैं एक साथ, सारी फैमिली बैठ के। हम बच्चों को भी कराते हैं साथ में बिठा के। तो बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ मैं आई हूँ, मेरे को थायराइड में मैंने आई हूँ 4 दिन हो गए, मैं 2 तारीख की आई हूँ। मैंने थायराइड की गोली नहीं ली है, कोई पेन वेन नहीं लिया है। हाँ वो सारा ले लिया। आपका यहाँ डॉक्टर साहब है, उनको दिखाया था, उन्होंने पीरियड मेरा अब 6 महीने से बिल्कुल ठीक है, अनबैलेंस नहीं है। अब एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा और नीम लगा लेना, तो तेरी थोड़ी झाइयाँ आ रखी है ना, तेरे को इससे भी सुंदर करना है मेरे को, इसको भी कर देंगे। और आपके उससे ही मेरी ठीक हुई है। मैं ये करते नहीं है ना, बताते कौन मानता है, कोई नहीं सुनता। ये माताओं की बहुत शिकायत रहती है कि माँ ने कोई नहीं संभाले, कोई नहीं सुनता। 7 था मेरा, अब 12 है। हाँ अभी मैंने पिछले महीने टेस्ट कराया तो मेरा 12 आया है, सारे टेस्ट कराए थे। मेरा हीमोग्लोबिन 16 के नीचे आया ही नहीं। ये तो सुपर हो गया इसका। इसमें पूरी सर्दियाँ अनार और उसका जो अनार गाजर और वो, हाँ अब ये तो इसकी तो चमक और ही कुछ बढ़ रही है। स्वामी जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस ही पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, और जी साइंस की। तो मानती थी थोड़ा बहुत योगा में, बट मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर मीरा कौमुदी आपसे बहुत पहले से जुड़ी हैं। वो बोलती थी मैं मानती नहीं थी। तो जब मेरा वेट 85 kgs हो गया, थायराइड बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड ले आए। तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा बाबा कैसे कराएंगे पता नहीं। 1 हफ्ते में 5 किलो कम, और मेरी थायराइड की दवाई तब छूटी। मैं डर डर के, क्योंकि साइंस की हूँ, हर 2 महीने पे टेस्ट कराती थी, हर बारी और ठीक हो जाता। तो थायराइड था ही नहीं, शायद दिमाग में था, या आपने आशीर्वाद दिया। और मैं अपने स्टूडेंट्स को और सब बच्चों को उस क्लास स्टार्ट कराने से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम जरूर कराने की कोशिश करती हूँ। પોતે સાયન્ટિસ્ટ છે, અત્યારે યોગી नहीं થઈ गई। मेरे को स्वामी जी अभी 30 इयर्स की एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू हो गया था अभी उसके, और मुझे पूरा मेरा राइट हैंड में पूरा इलेक्ट्रिकल पेन था। मैं 3 डेज तक रात को खड़े रही हूँ, सो नहीं पाई थी, और आई वॉज एडमिटेड 7 डेज के लिए मैं एडमिट थी। मुझे पूरे इंजेक्शंस लगते थे, अभी भी ये कैनुला के मार्क्स से आउट हो गए। तो मेरे को एक इंजेक्शन आईवी देने के लिए 3-4 अटेम्प्ट्स करते थे वो लोग कैनुला, क्योंकि आउट होता था, बल्जिंग होती थी। तो मेरी मम्मी ने डांट लगाई, मम्मी ने बोला बस डिस्चार्ज लो, घर आओ और सीधा योगराम जाओ। जब भी मैं, मम्मी और मेरी बेटी डेली इंडिया टीवी पे आपके साथ योग करती है, वो मुझे बोलती है टाइम नहीं मिलता है बोल के तुम करती नहीं हो, अभी आप यहाँ से डिस्चार्ज लो। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में रोती रहती थी, मम्मी डर लगता है, बहुत इंजेक्शंस लग रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है। तो नर्स लोग भी बोलती थी आप तो डॉक्टर हो, आपको क्या है, आप तो सबको लगाते हो। तो ऐसे बोल के लगाते रहते थे। फिर मेरे को पूरा दोनों पैर में स्वामी जी मेरे को पीडल एडिमा हो गया, तो इतनी स्वेलिंग थी। और मेरे को ऐसा था कि वॉशरूम में भी मेरे को मेरे हस्बैंड या मम्मी या किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं चल के नहीं जा पा रही थी। मुझे इतना मतलब इतनी मेडिकेशंस की वजह से मुझे इतने चक्कर आते थे, तो मेरा इतना वीकनेस हो गया था। अभी यहाँ आके मेरा मसाज वगैरह हुआ तो बिल्कुल पैर वगैरह एकदम स्वेलिंग चली गई है। और मेरे को बचपन से मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस था, तो मैं बिना रुमाल के नहीं जा सकती थी, कोल्ड हमेशा। और वो फिर बढ़ के मुझे अभी ब्रोंकियल आस्मा हो गया। तो या तो मुझे 1 हफ्ता कोल्ड रहता था या 1 हफ्ता ब्रोंकियल आस्मा। तो या तो मेरे को उसके लिए डेरिफाइलिन वगैरह लेना पड़ता था, या फिर मैं लीवोसिट्रिजिन लूँ। फिर वो लूँ तो मुझे नींद आए और मेरे को काम। अभी मेरा बैक पेन हो गया, तो तब से मैंने डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। अभी मैं US हेल्थ केयर के साथ काम करती हूँ, तो मेरे को 8 घंटा 9 घंटा रेगुलर बैठना पड़ता है। तो मेरे को उसकी वजह से भी सर्वाइकल का दिक्कत हो गया। यहाँ आने के बाद अभी पेन कम हो गया है, स्वेलिंग कम हो गई है। પોતે ડોક્ટર છે અને યોગથી આપણે એલર્જી તો બધું મટાડી દીધું છે, આ બાકી દર્દ મટાડી દીધું છે, થોડું બાકી છે સર્વાઇકલ, એ પણ સારું થઈ જશે। योग कराते ताकि उसको ये એના માટે ઇન્સ્પિરેશન છે, ડેલી યોગ કરે છે। અને તમને શું મટાડ્યું? मैं को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। मैं तो घर से 1 साल से योगा कर रही हूँ। हाँ जी, इंडिया टीवी देख के मैंने अपना 9 किलो वेट कम किया घर में ही। हाँ जी, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम સારું કરી લીધું। અને તમે શું કર્યું? बाबा जी मुझे बचपन से मतलब वेट गेन नहीं होता था और टाइफाइड पॉजिटिव आता था।
और डॉक्टर्स ना एलोपैथिक में कोर्स करवाते, फिर टेस्ट करवाते, फिर पॉजिटिव, फिर टेस्ट कराते, फिर पॉजिटिव, मतलब बहुत 4-5 कोर्स इकट्ठे किए हैं, कुछ असर नहीं हुआ। कितना वजन था तेरा? मेरा वजन स्वामी जी मेरा मतलब ग्रेजुएशन तक मेरा 35 था। उसके बाद से स्वामी जी मेरे को जुकाम हेरिडिटरी था और हैंकी मेरा इतना नहीं इतना होता था और सारे मुझे कहते थे टंकी है तू, तो मतलब टंकी के नाम से मुझे बोलते थे और बहुत डीमोरलाइज करते थे कि तू मतलब नहीं उभर पाएगी, तू अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसे ही मतलब बहुत डीमोरलाइज करते थे। उसके बाद मैंने 2012 में मैंने जब आपको देखा ना तो पापा भी करते थे। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर 3 टाइम में अगर ऑफिस भी जाती थी ना फटाफट काम खत्म किया। मॉर्निंग में जो मैं डिक्टेशन लेती थी अब 50 है, 35 से 50 की होगी। उसके बाद टाइफाइड भी मेरा शादी भी होगी है तेरी? नहीं, अभी शादी भी करवा देंगे तेरी। उसके बाद एक अच्छा टाइफाइड लड़का ढूंढ देंगे भाई इसके लिए। उसके बाद टाइफाइड मेरा पता नहीं कहाँ गया है और ना ही मुझे हेरिडिटरी कोई कोल्ड है। तब इससे जॉब क्या करती बेटा? मैं एज अ स्टेनोग्राफर करती हूँ। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। अब मैं स्वामी जी पापा को लेके आई हूँ, उनसे आपको मिलवाना है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको गोइटर हो गया है और 20 किलो वेट लूज हो गया है। उन्होंने मतलब हार गए थे, तो अब एंड में हमने सोचा ऑपरेशन, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा कितने भी लगते हैं आप एक बार वहाँ चलो, एक बार चलो मेरे साथ, कुछ तो होगा। और अब यहाँ जब से आया ना डेली चंडीगढ़ में जब से थे ना डेली आधा किलो वेट घटता जा रहा था, डेली घटता था। 80-85 से हाँ जी 60 इतने पे आ गया था और अब यहाँ आके 63 था समथिंग, अब 2.5 दिन में ही 65-60 ऐसा कुछ हो गया था। तो अब तो फायदा हो गया। हाँ जी। तो तेरे तो पहले बेटी ने अपना वजन बढ़ाया, अब अपने पापा का वजन बढ़ाने के लिए जाइए। अच्छी बेटी, हाँ मिल लेंगे तो એ તો જ્યારે પૂછો ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે યોગ કરવાથી શું થયું। ઘણા બધા આમ જ બકવાસ કરતા હોય કે આ યોગથી શું થાય। અરે યોગથી બધું થાય, કરવું પડે મારા દીકરા, કરી લો। हाँ तो चलो ઊભા થાઓ, खड़ी हो जाओ सभी। गुजराती में ઊભા થાઓ એટલે खड़े हो जाओ। हाँ अने अभी थोड़ा यहाँ पेड़ पौधों के सब नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया है, तो दररोज सूर्य नमस्कार बधाने करવું જ જોઈએ। चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। आ लेडीज नाम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, फक्त 5 प्राणायाम, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम અને આ સૂર્ય નમસ્કાર આટલું જ કરી લે તો એનાથી બધું થઈ જાય। પછી જમણા પગ ઉપર બેસો, પછી આ જમણો પગ પણ પાછળ લઈ લો, પછી આગળ આવી ગયા સાષ્ટાંગ આસનમાં, પછી ઉઠી ગયા સામે, પછી વાપસ આવી ગયા। ડાબા પગ આગળ લઈ લીધું અને જમણાને આગળ લઈ લીધું। બધી બહેનોને 10-12 થી માંડીને प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। 2 बारથી માંડીને 10 બાર સુધી આમ કરી શકાય। જેનાથી વધારે કશું નહીં થાય, ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લેવાનો। ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લો। ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામથી અને પ્રાણાયામથી જ 90% પ્રોબ્લેમો સોલ્વ થઈ જાય। પછી આસનો જેને બહુ વજન હોય એનો તો પછી સ્થિત કોણ આસન, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन करવું પડે। थोड़ा कमर में दुखाવો है तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन करવું પડે। थोड़ा आसनों કરી લેજો, એમાં શું વાંધો। પણ ફક્ત આ 5-5 આસનો પણ બતાવીશ, પણ આ બધું નહીં થાય તો ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ જ કરી લેજો। જેને યુટીઆઈની પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણી બધી બહેનોને પ્રોબ્લેમ હોય તો આ ગોખરું એનું ઉકાળું પી લેજો। જેને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય તો ધનિયાનો
ઉકાળો કરીને પી લેજો, નહીતર થાઇરોગ્રીટ લઈ લેજો. નાનકડી નાનકડી વસ્તુઓ છે. નોર્મલ ડિલિવરી માટે આ દરરોજ બટરફ્લાય કરી લેજો, પછી પ્રાણાયામ મૂળ બંધ આ લગાવી લેજો, પછી બેડ રેસ્ટ નહીં કરવું પડે. અને ડિલિવરી વખતે અપા માર્ગની જડ એનું મૂળ આ નાભીને પાસે આમ લગાવી દેવાય. અને જ્યારે બાળક થઈ જાય, નોર્મલી ડિલિવરી થઈ જાય તો એને હટાવી દેવાય. આ નાનકડી નાનકડી વાતો છે, પણ એનો લાભ બહુ જબરદસ્ત છે. તો આજે 5 આસન સ્પાઇન કોડ માટે, ઓબિસિટી માટે એ તો બતાવવાના જ છે, પણ બહેનોને છે ને યુટીઆઈની પ્રોબ્લેમ હોય કે યુટેસમાં ઓવરીમાં સિસ્ટ પોલિસિસ્ટિક ઓવરીઝ હોય કે ફિલિપિયન ટ્યુબ બંધ હોય કે બધા યોગ કરવાથી સારું થાય, આ બધું અમે જોયું છે. એટલા માટે હું કહું છું. અને દેશ દુનિયા જે અડધી આબાદી છે એ યોગ કરતી થઈ જશે તો પછી કોઈને કોઈ રોગ થાય જ નહીં. ચલો, અત્યારે તો અમે પ્રતિકાત્મક અભ્યાસો કરી રહ્યા છીએ, પછી જેને પ્રોબ્લેમ છે ને એ વધારે કરી દે. પછી ઊંધા સૂઈને મકરાસન થાય. મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, ધનુરાસન, પછી સીધા સૂઈને મરકટાસન. કમર બહુ દુખે લેડીઝ, એના માટે ચંદ્રપ્રભાવટી ઓર્થોગ્રીટ લઈ લેજો. ગળો તો બધાના માટે સારી છે. એ દુખાવા માટે, એ કોરોના માટે, એ ડાયાબિટીઝ માટે, એ ઇમ્યુનિટી માટે, આ બધા સ્કિન પ્રોબ્લેમ માટે એક ઔષધિ. એ એન્ટીબાયોટિક પણ છે, એન્ટી ઇન્ફ્લેમેશન પણ છે. ભુજંગાસન, બે જાતનું ભુજંગાસન, હથેળી ઉપર હથેળી મૂકીને સાઈડમાં મૂકીને. પછી સલભાસન, જેનાથી જેટલું થાય આરામથી કરી લેવાનું ધીરજ સાથે. પછી ધનુરાસન, પછી સીધા સૂઈને મરકટાસન. આજે તો એકદમ નિસર્ગના વચ્ચે અમે કરી રહ્યા છીએ, એટલે ઘણા બધા પાંદડા પડી ગયા છે આસનો ઉપર, વાંધો નહીં. ખૂબ પત્તે પડે, વૃક્ષોની વચ્ચે અમે કરી રહ્યા છીએ, જંગલની વચ્ચે. મરકટાસન એક અભ્યાસ, મરકટાસનનો બીજો અભ્યાસ, અને મરકટાસનનો ત્રીજો અભ્યાસ. આ બધું જેનાથી જેટલું થાય એટલું કરી લેવાનું. પછી જેનો વજન વધારે છે ને એના માટે 3 અભ્યાસ સૂઈને. અર્ધલાસન, એક પગથી કે બંને પગથી. ચલો સબ કરો. એક પગથી, પછી બંને પગથી, પછી એક પગથી આમ ફરાવાનો. પાદવૃત્તાસન, આમ મોટું જીરો બનાવવાનું, ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આવી રીતે. અને જે બંને પગથી કરી શકે તો બંને પગથી આમ કરી લેવાનું આવી રીતે. અને દ્વિચક્રિકાસન, કેટલું સરસ પવન ભેગે છે. कितना बढ़िया संगीत आता ना हवाओं का. देखो કેટલું સરસ સંગીત આવે છે. આ થયું. પછી બેસીને 2 અભ્યાસ કરી લેવાના. ચાલો બેસીને 2 અભ્યાસ કરી લો. આ અભ્યાસ થઈ ગયા. તો આજનો અભ્યાસ લેડીઝ માટે સ્પેશિયલ હતું. એબીપી અસ્મિતા ઉપર દરરોજ અમે યોગ ભગાવે રોગનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અને બધાને પ્રેરણા આપીએ છીએ કે તમે યોગ કરો અને નિરોગ રહો. બીજાના પણ પ્રેરણા આપજો, મારી સાથે સવારે ઉઠીને યોગ કરે અને નિરોગ રહે. આ એક એવું અભ્યાસ છે, એવું કામ છે. તમે દરરોજ આવી રીતે યોગ કરશો તો તમને કોઈ રોગ નડશે નહીં. અને સાથે સાથે જેને બહુ જ લિકોરિયાની પ્રોબ્લેમ હોય તો શીશમના પાના લઈ લેવાના, નહીં તો પદર સુધા લઈ લેવાની. એ અમે નારી સુધા ટેબ્લેટ, નારી સુધા સિરપ, આ બધું ઔષધિઓ પણ, શતાવરનું ચૂર્ણ એ પણ આપ્યું છે. પણ મારી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી યોગ છે. તમે યોગ કરશો તો તમને બીજી દવાની જરૂરત નહીં પડે. યોગથી જ તમે બીપીને, શુગરને, થાઇરોઇડને, અસ્થમાને, આર્થરાઇટિસને મટાડી શકો છો.